Hello everyone, welcome back to our next class of class 12 physics electric field and charges. So there was a long delay of your videos because of my ill health and some technical issues in my equipment. So now onwards I'll try to give you full and fledged videos regularly with all the chapters, topics and numericals. So my dear students, till now you have got your results and now you are promoting to the next classes. So I hope you attempt well and you scored well in your examinations. So now onwards we'll do our next chapters, next topics nicely in the nice way. So ready to dive in the vast ocean of physics with your teacher, with your mentor, with your study partner Himani at my channel Physics by Himani. So please be connected for the upcoming videos, and today we are going to start the new topic, that is electric field lines. So what are electric field lines? These lines are the lines originated with any positive test charge, the field around that, then some lines produced originate from that and terminate to next side. And we'll discuss the relation between field strength and density of field lines. So I hope you will be enjoy this topic. So let's move ahead with the topic. Now move ahead. So here, as we started electric field, now we are going to discuss about electric field lines. What is electric field line? These lines are also known as electric lines of force. So, what are these lines? An electric field line is a path traced by a positive test charge under the influence of an electric field. यानी कोई भी अगर एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने किसी भी जगह रखा है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ. सो वो वहां पर अपना उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है. तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो रास्ता है जहां पर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो उसके इन्फ्लुएंस में आने पर वो जो लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता है, दोज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट शोज द लोकल फील्ड डायरेक्शन फॉर अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब जो ये लाइन हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है, लाइक आप डायग्राम में आगे यू विल सी कि कोई भी फील्ड लाइन है तो उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वही उसका लोकल फील्ड डायरेक्शन बताता है. ठीक है, किस डायरेक्शन में वो फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं. फील्ड मैग्नीट्यूड इज इंडिकेटेड बाय लाइन डेंसिटी. अब फील्ड लाइंस कितनी है तो वो उनकी लाइन डेंसिटी पर बताता है. मीन्स एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट or curved path along which a unit positive charge is supported to move when free to do so in an electric field. मतलब कहीं भी घूम रहा है उसी पेरिफेरी में, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया में. These lines of force do not physically exist but they represent real situations. ये फिजिकली तो हमें दिखती नहीं है ऐसे, लेकिन ये जो है हमें बताती हैं रियल सिचुएशन. कैसे? देखिए, आप देख रहे हैं इन द डायग्राम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो भी कहीं से भी एक कर्व्ड लाइन आपको दिख रही है सामने. अब इससे जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. सिमिलरली एक लाइन आपने आगे देखी, दैट लाइन, उसका टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं आप? देखिए वहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है. These lines are known as electric line of forces. Now moving ahead with field line properties. Yes, here are some properties of field lines. These lines originates on positive test charge and terminate on negative test charge. देखिए सबसे पहला मेन एस्पेक्ट है कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं. For isolated charges, lines may begin or end at infinity. अब अगर isolated charge है जो कहीं भी ऐसे ही, मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वहां पर से डेवलप होने वाली लाइन वहीं पर बिगिन होती हैं और एंड होती हैं कहीं इन्फिनिटी पे जाकर. These indicating an open field configuration, जो हमें शो नहीं होता है, and that is open field configuration. Okay. Now here is the first property.
electric lines of force due to a point charge. Representation of electric field in terms of field vector. देखिए यहाँ कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपको शो हो रहा है. द साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये चारों तरफ इसके क्या जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, अभी जैसे आपको बताया दिस लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव. तो ये बाहर की तरफ जो लाइन फील्ड लाइंस निकल रही हैं, it is representing that here is charge is positive and the field lines are coming outward. Okay, and here the Q test charge is greater than 0, and in the next picture here is a negative test charge. तो obviously अभी आपसे बात की हमने रिगार्डिंग नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, एंड होती हैं. तो यहाँ पर अंदर की तरफ these line are representing inward towards the negative test charge, and जैसे कि negative test charge की बात हो रही है तो it is smaller than 0. The test charge Q is smaller than 0 and the field is spherically symmetric. मतलब एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सर्कुलर पाथ सा बना रहा है ना, spherical kind of. Now second property, that is electric lines of force due to a pair of equal and unlike charges. This term where equal and unlike charges meet, उसे हम क्या कहते हैं in physics? It is known as dipole. We'll discuss this later in this chapter only, but right now what is showing in this diagram, here are two charges connected with each other, positive and negative, and as you people are already aware about that कि positive and negative आपस में क्या करते हैं, attraction. So they start, the lines are starting from the positive charge and ending on the negative charge. This is showing in the figure. And what is the direction of electric field? देख रहे हैं आप, from ये जो पेरिफेरी है ग्रीन कलर से मैंने शो की है, ये पेरिफेरी है, फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, उसका टेंजेंट आप ई वेक्टर देख पा रहे हैं, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, और वो कहाँ मीट कर रही है, टर्मिनेट कहाँ हो रही है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज पे. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस 2. ठीक है, वैसे तो है ही आपका सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, बट दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशन इन जेई मेंस 2. So these field lines seem to contract longitudinally, lengthwise, as if the two charges are being pulled together. अब ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं ना. It explains attraction between two unlike charges. देख रहे हैं आप कि दोनों opposite charges हैं, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, एक attraction pull है there. And these field lines creates a cylindrical symmetric pattern अबाउट द डाइपोल एक्सिस. अब ये पूरा हमने जैसे कि आपको क्लियर करा कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये पूरा एंड है आपका, इट क्रिएट्स डाइपोल, एक डाइपोल बनाते हैं. सो डाइपोल के चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक आपको दिख रही है इन द पिक्चर, यू आर ऑब्जर्विंग दैट. तो सेम पैटर्न यानी कंसिस्टेंट सेम सिमेट्रिकल पैटर्न ये बना रहे हैं. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. तो आप देख रहे हैं कि पैरेलली सारी लाइन फील्ड लाइन से ये जा रही हैं. ठीक है, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस. अब देखिए यहाँ हमने बात की रिगार्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. दोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस व्हाट दे आर क्रिएटेड अ डाइपोल, है ना, डाइपोल से रिलेटेड वो डाइपोल बनाते हैं. एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू सेम पॉजिटिव चार्जेस. टू सेम चार्जेस उनके साथ में अगर वहां फील्ड लाइन देखें तो किस तरह की बनती हैं, आप देख रहे हैं पिक्चर में. दीज लाइन्स सीम टू एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर एज इफ द टू चार्जेस आर बीइंग पुश्ड अवे फ्रॉम ईच अदर. अब देख रहे हैं दोनों चार्ज क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्जेस दूसरे को एक दूसरे को रिपल करते हैं. तो फेंकते फेंकते साइड में एक लेटरल एक वो प्रेशर बनाते हुए एक ही तरफ को लाइनें जाती हुई आपको दिख रही हैं. एंड वहां पर भी सेम सिलेंड्रिकल सिमेट्री दिख रही है आपको, कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोइंग देयर. ठीक है, तो विच एक्सप्लेन रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस. अब इसी वजह से वो पुश्ड अवे कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, रिपल्शन अगेन. एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is 0 at the middle point. आप देख रहे हैं here is a middle point that you can say न्यूट्रल पॉइंट. वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरा 0 है, कुछ चार्ज फील्ड लाइन कुछ नहीं शो हो रहा है एट दैट पॉइंट, नो. सो दिस इज नोन एज विच इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट. फ्रॉम इट नो लाइन ऑफ फोर्स पासेस. ये किसके केस में है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज जब आप लेते हैं. एंड
Again, I am explaining this field also has a cylindrical symmetry. Now, moving ahead with next property, that is field lines of a positively charged plane conductor. आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप एक कंडक्टर है जिसमें सारा ही चार्ज जो है पूरी स्लिट पर पॉजिटिव है. तो अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव नॉर्मली अवे फ्रॉम द प्लेन कंडक्टर. इसके नॉर्मल पे आप सारी लाइन फील्ड लाइन देख पा रहे हैं. और वो कैसी लाइन सरफेस से कंडक्टर की सरफेस से दीज लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. पूरी सारी पैरेलल हैं और पॉजिटिव से ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर फॉर्म में जा रही हैं और आपस में इनकी फील्ड लाइंस का जो पोजीशन है वो कैसा सिमेट्रिक दिख रही है आपको, दैट इज पैरेलल. So these lines are equispaced indicating that electric field E vector is uniform at all points near the plane conductor. So I hope आपको ये properties clear हुई होंगी. Now moving ahead with the next topic, that is relation between electric field strength and density of line of forces. अब आप देख ही रहे हैं in this picture here, देखिए यहाँ पे हमने दो पोर्शन लिए हैं, मतलब यूनिट एरिया एलिमेंट लिया है आपको शो करने के लिए कि यहाँ फील्ड लाइंस दो P एंड Q. यूनिट एरिया एलिमेंट जो मैंने लिया है उस पर आपको क्या नजर आ रहा है इन द पिक्चर. इट इज इजीली सेइंग दैट जहाँ लाइंस ज्यादा हैं वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है और जहाँ लाइन दूर दूर स्प्रेडिंग डाइवर्जिंग here and there spreading outward वहां पर रीजन जो है वीक फील्ड है. ठीक है, तो यानी आप इसी से समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज proportional to the density of line of force. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स के जस्ट प्रोपोर्शनल होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग अ यूनिट एरिया एलिमेंट प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड एट द पॉइंट. वो उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितनी नंबर ऑफ लाइन जितनी ज्यादा जा रही हैं वहां पर उतना ही डेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज स्ट्रॉन्गर देन एट Q. सो नाउ मूविंग अहेड विद अ क्वेश्चन दैट इज शो दैट द 1/r square dependence of electric field of a point charge is consistent with the concept of electric field lines. Now this question is very interesting and this topic also we are discussing this topic, consistency of the inverse square law with the electric field lines. यहाँ पर अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज. सो लेट्स स्टार्ट दैट. एज इट इज शोइंग इन द पिक्चर, द नंबर ऑफ रेडियल लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q इन अ गिवन सॉलिड एंगल दैट इज डेल ओमेगा इज कांस्टेंट. देखिए आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ओरिजिन पॉइंट O वहां से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज रखा है और वहां से इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये जो है फील्ड लाइंस ये रेडियल लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रही हैं. और यहाँ पर आप जैसे जानते हैं, यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट सॉलिड एंगल फॉर्मूला. सॉलिड एंगल आप जानते हैं, सॉलिड एंगल को कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो दैट इज शोइंग इन दिस पिक्चर. You all are already aware about 2D and 2 dimension and 3 dimension figure में अगर आप एंगल कैलकुलेट करते हैं तो फॉर 2 डायमेंशन देखिए यहाँ पर आर्क जो है L है एंड थीटा आपको कैलकुलेट करना है तो इट विल बी L/R ऐसा हो जाता था. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 3D 3 डायमेंशन. तो यहाँ पर जो हमने एंगल लिया दैट इज डेल ओमेगा एंड द आर्क इज टोटल पूरा उसका पेरिफेरी लाइक अ कोन. तो डेल S बाय R स्क्वायर इट विल बी. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. इसी तरह से हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है फॉर डेल एरिया एलिमेंट P1 एंड P2 और उनका जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी S1 एंड S2. तो we'll calculate accordingly what field range at P and the field range at P1 and P2. दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद put it in the relationship between electric field strength to the density of line of forces. As we have discussed that electric field strength is directly proportional to density of line of forces. So with this आपके पास वैल्यू आएगी P1 पॉइंट पर जो आपके पास सरफेस एरिया आएगा दैट विल बी
R1 स्क्वायर डेल ओमेगा एंड P2 पॉइंट पर S2 होगा R2 स्क्वायर डेल ओमेगा। तो फिर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपॉन एरिया. So number of lines from P1 element, that will be let N1, number of field lines passing through S1, and N2 is the number of field lines passing through S2. And आप देख रहे हैं क्योंकि ये एक ही सेम चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं तो द फील्ड लाइंस विल बी सेम. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस P1 एंड P2 बोथ आर इक्वल, दैट विल बी स्मॉल n. ओके, लेकिन हमने दोनों एरिया एलिमेंट जो लिए हैं उन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो इट विल बी E1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन S1 एंड E2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन S2. तो आप इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड N1 इज इक्वल टू N. तो यू हैव P1 इज इक्वल्स टू N अपॉन R1 स्क्वायर डेल ओमेगा एंड P2 आपके पास N अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन डेल ओमेगा आ जाएगा. नाउ from the relation electric field strength directly proportional to the density of line of forces, E1 upon E2 is equals to N upon R1 square del omega into R2 square del omega upon N. So from here N से N cancel हो जाएगा and del omega 2. So we'll get the answer that will be E1 by E2 is equals to R2 square upon R1 square. So we'll get the final relation E is inversely proportional to R square, and this is your relationship between electric field strength and density of electric line of forces. So my dear students and friends, if you like this topic, please do not forget to like, share and subscribe my channel Physics by Himani. Thank you. Enjoy every moment. Good day. Bye-bye.